बारे में बहुत से राइटर ने किताबें लिखा है। Good morning everyone, welcome back to my channel, welcome to হুন্ডার। আমরা আছি হুন্ডারে, হুন্ডার নোবরাগাড়িতে একটা ছোট্ট গ্রাম। আমরা উঠেছি স্যান্ডফিল্ড গেস্ট হাউসে, হুন্ডারে। এটা হোমস্টে চত্বর বা গেস্ট হাউস চত্বরটা এত সুন্দর, মানে বাড়ির সামনে সবজির বাগান, গাছে ছোট ছোট আপেল হয়ে রয়েছে। এই হোমস্টেটাকে এক্সপ্লোর করতে আমাদের একটা গোটা দিন লেগে যাওয়ার কথা, কিন্তু আজকে আমাদের অন্য প্ল্যান আছে। আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা যাবো তুর্তুক। তুর্তুক হচ্ছে ইন্ডিয়ার লাস্ট ভিলেজ, যেখানে গিয়ে টুরিস্টরা থাকতে পারে। তারপরে যে ভিলেজটা আসে সেটা হচ্ছে তাকশি। আমরা তাকশিও যাব। তাকশিতে কোনো হোমস্টে বা টুরিস্টদের থাকার জায়গা নেই। তারপর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে পিওকে। তারপরে একটা ভিলেজ আছে যেটাকে থাং বলে, কিন্তু থাংয়ে টুরিস্টদের যাওয়ার পারমিশন নেই। যদিও তুর্তুক খুব রিসেন্টলি টুরিস্টদের জন্য ওপেন হয়েছে 2010 থেকে। তুর্তুক যাওয়ার অনেক দিনের ইচ্ছা, আজকে সেই ইচ্ছা পূরণ করার চেষ্টা করব। আজকে আমাদের রোড ট্রিপ, বাইক রোড ট্রিপ তুর্তুক অব্দি। অন দ্য ওয়ে টু তুর্তুক। আমরা হুন্ডার থেকে বেরিয়ে গেছি, এখন তুর্তুক যাচ্ছি। পুরো মিলিটারি এরিয়া। তুর্তুক হচ্ছে ইন্ডিয়ার লাস্ট ভিলেজ, যেখানে টুরিস্টরা যেতে পারে এবং গিয়ে থাকতে পারে। হুন্ডার থেকে তুর্তুক 85 কিলোমিটার মতো, পৌঁছাতে সময় লাগার কথা 2.5 ঘন্টা। আজকের ওয়েদার একেবারে ঝলমলে, প্রখর রোদ। আমরা 10:15-তে স্টার্ট করেছি। আজ রাস্তা বেশ ফাঁকা, হার্ডলি কোনো গাড়ি ক্রস করছে। আজকের রাইড আমাদের কাছে খুব প্রেশাস। আমাদের দুজনেরই অনেক দিনের স্বপ্ন তুর্তুক যাওয়ার, ওখানকার গ্রামের মানুষদের থেকে অনেক কিছু শোনার, জানার। এখন ক্রস করছি থয়েস। থয়েস হলো মিলিটারি এয়ারফিল্ড। এই এয়ারস্ট্রিপ সিয়াচিনের আর্মিদের বিভিন্ন জিনিসের সাপ্লাই দিয়ে থাকে। থয়েস হুন্ডার থেকে 16 কিলোমিটার। এটা ডিস্কিট তুর্তুক হাইওয়ের পাশেই। এই রোডই ইন্ডিয়া পাকিস্তান লাইন অফ কন্ট্রোল অবধি লিডস করে। খারদুংলা পাস ক্রস করেই তুর্তুক আসতে হবে। খারদুংলা হলো ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট মোটরেবল পাসেস। আমাদের চ্যানেলে খারদুংলার ভিডিও দেখতে ওপরে আই বাটনে ক্লিক করতে পারেন। 2017-তে ডিফেন্স মিনিস্টার নির্মলা সীতারামন থয়েসে এসেছিলেন। হুন্ডার থেকে থয়েস অবধি এখন জার্নিটা ভ্যালির মধ্যে দিয়েই মোটামুটি। দুই ধারে কোনো খাদ এখনও বিশেষ পায়নি। রাস্তাও খুবই ভালো, থ্যাঙ্কস টু বিআরও, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, যাদের ইনিশিয়েটিভের জন্য আমরা এত দূর এসে এক্সপ্লোর করতে পারছি। থয়েসের পর স্কুরু বলে একটা ভিলেজ পেরিয়ে শিয়ক নদীর ওপরে কাঠের একটা ব্রিজ পেরিয়ে শিয়ক ক্রস করেছি। ব্রিজে ফটোগ্রাফি প্রহিবিটেড ছিল, মানে হুন্ডার শিয়কের যে পারে আমরা এখন অন্য পারে রয়েছি। এটা পুলিশ চেকপোস্ট, এখানে পারমিট চেক হলো। অতনু গেছিল ভেতরে পারমিট চেক করাতে। चॉकलेट तो नहीं लाया। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों नहीं? আর একটা ব্রিজ ক্রস করলাম। হুন্ডার থেকে তুর্তুকের পথে এই রকম ব্রিজ দুটো পড়ে, যাতে শিয়ক নদী ক্রস করতে হয়। এই ব্রিজগুলোর ওপর দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর, কি ভয় লাগছিল। কাঠের ব্রিজের ঝনঝন আওয়াজ, সাথে শিয়ক নদীর স্রোতের আওয়াজ। বোরদাং গ্রাম ক্রস করছি। এখানে গ্রামের বাচ্চারা টুরিস্ট গাড়ি দেখলেই চকলেট চায়, বেশ কিউট। আগে জানলে চকলেট নিয়ে আসতাম, আমাদের কাছে খালি বিস্কিটের প্যাকেট ছিল, তাই দিলাম। আর একটা ব্যাপার দেখলাম, ওরা ভিডিও করতে দিতে চায় না, ভিডিও করলেই মুখ ঢেকে রাখছে। ওয়েলকাম টু তুর্তুক। 3 ঘন্টা জার্নি করে আমরা ফাইনালি তুর্তুকে। একটা কথা আমরা প্রায় বলে থাকি, আসল মজা জার্নিতেই আছে, ডেস্টিনেশনে না। কিন্তু তুর্তুক এটা ভুল প্রমাণিত করেছে। প্রায় বিগত 2 ঘন্টা ভালোভাবে চোখে সবুজ দেখিনি। এখানে পৌঁছে এত সবুজ মনটা ভালো করে দিচ্ছে।
পাহাড়ি নদীর স্রোত ভীষণ বেগে বয়ে চলেছে পাথুরে রাস্তা কেটে। অনেকেই সামান্য জলে নেমেছে। এটা তুর্তুকের খুব বিখ্যাত সেতু। সেতুর দুই পারেই গ্রামের জনবসতি। এখন যাচ্ছে গ্রামের ভিতরে। সরু গলি রাস্তা, দুধারে পাথরের দেওয়াল। ভিতরে একটা বহু পুরনো মিউজিয়াম আছে। আমার স্নিকার্সটা এতদিন বহু অত্যাচার সহ্য করে আজ বাই বলে দিয়েছে। আমি ওখানেই একজনকে সারানোর জায়গা জিজ্ঞাসা করি। ওর নাম ফাজিল, গ্রামেরই ছেলে। ও আমাকে একটা দোকানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এত হেল্পফুল সবাই এখানে। আপাতত ফেভিকল দিয়ে লাগানোর চেষ্টা চলছে। গ্রামের সব বাচ্চারা গল্প করতে এসেছে। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? आप? अच्छा, आप सबसे छोटी हो? आप क्या करने जा रहे हो? मैं तो क्लास में नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हूँ आपसे। आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आई हूँ। नाम सुना है आपने? कलकत्ता। हाँ, बंगाल का नाम सुना है? हाँ, बंगाल से आए हैं। और आप तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, फोटो भी नहीं लेने लग रहा हो। थैंक यू अंकल जी, आपने बहुत मदद किया। मुझे एक दिखाएंगे कैसे है आपकी कपड़ा? वहाँ से फजिल से आप मान हाँ, वो लीजिए यहाँ पर अच्छा। ही कम होंगे दादा इस वो छत से अंकल जी, आपका तो कुछ याद रहेगा ना कि मतलब 71 से पहले कैसा था, बाद में कैसा है? जन्म जो है कत्ता के बाद हुआ है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बाद आदमी को पाकिस्तान तो कुछ तो सुना होगा आपने उन लोगों से, कैसा था, अब कैसा है, मतलब क्या हुआ था? तो गरीबी थी ना सर हर जगह पर। हाँ हाँ। तो वहाँ भी गरीबी, यहाँ भी आजकल तो मतलब रिमोट प्लेस हर एक जगह एक ही जैसा होता है, चाहे किसी भी नाम से हो। और आपके जो मतलब फादर है वो क्या यही पे है क्या पाकिस्तान में? यही पे है। कुछ रिश्तेदार है जो वहाँ पे है, अब वापस नहीं आ सके, मतलब बातें शातें होती है, बातें मतलब फ़ोन में भी बातें नहीं होती है। अच्छा, और कभी मिलने का भी मौका नहीं मिलता है? थैंक यू। अच्छी है खाने में। आप नहीं खाओगे? आप तो रोज खाते हो ना? हाँ। इसका सीजन क्या है, मतलब कौन से टाइम पे होते हैं? मतलब हर पूरा साल तो नहीं होते हैं? फिर अप्रैल से होकर अगस्त में ज़्यादा तक। अच्छा अच्छा। अरे গাছ ভর্তি পাকা অ্যাপ্রিকট। ফাজিল নিজের সব কাজ ফেলে আমাদেরই সাথে ছিল পুরো সময়টা। গ্রামের পুরনো মিউজিয়ামে যাচ্ছি।
पहले ये मैप एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद हम ठीक। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है। इसमें जितने भी ग्रीन लाइन्स है इसको गिलगित बल्तिस्तान कहा जाता है, बल्तिस्तान। और ये बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है, पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसे नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहते हैं इस एरिया को। और ये एरिया 4 देश से इसका सरहद मिलते हैं, यानी बॉर्डर इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। इस एरिया पर पुराने ज़माने में यबगो डायनेस्टी ने 2000 ईयर्स रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का राजा तुराब खान ने इस पैलेस को 1500 सेंचुरी में समर के 3 महीने के लिए बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ टूर टुकाते थे, बाकी वो परमानेंट उनका कैपिटल पैलेस खपुलू में रहता था। खपुलू एक बहुत बड़ा शहर है, अभी पाकिस्तान के अंदर है। तो वो सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ टूर टुकाते थे। वो इसलिए आते थे क्योंकि उस वक्त तुर्तुक से 4 रास्ते निकलते थे। आप तुर्तुक से चाइना भी जा सकते थे थ्रू सिल्क रूट के थ्रू आप चाइना भी जा सकते थे। तुर्तुक से आप लेह भी जा सकते थे। आप तुर्तुक से करगिल यानी श्रीनगर भी जा सकते थे और आप तुर्तुक से खपुल भी जा सकते थे। इससे समय में बहुत से ट्रेडर्स आते थे और सारे ट्रेडर्स तुर्तुक होकर जाते थे क्योंकि तुर्तुक सेंटर में था। इसलिए राजा उनसे टैक्स लेने के लिए, ट्रेडर्स से टैक्स लेने के लिए समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्क करते थे। तो आप लेह से निकला खरदुंगला, खलसा, डिस्कित, हुंडर, अभी यहाँ तुर्क पहुँचे। 1971 से पहले तुर्क पाकिस्तान के अंदर था। 1971 में वॉर हुए, तभी इतना पार्ट हमने ऑक्यूपाइड किया 71 की लड़ाई में। पहले बॉर्डर ऐसा सीधा था, अब थोड़ा कर्व बन गए। तो ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के मैप में से ये पार्ट अक्साई चंद एक्चुअली चाइना के पास है। 1962 के वॉर में चाइना ने लिया था इतना पार्ट, और ये पूरा पोर्शन पाकिस्तान के अंदर है। 1947 के बाद पार्टीशन हुए थे इंडिया पाकिस्तान करके, उस वक्त इतना पोर्शन पाकिस्तान के अंदर था। तो हमारे पास एक्चुअली सिर्फ इतना पार्ट है। हम अपने मैप में तो पूरा JNK ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअली नहीं है। एक्चुअली इतना चाइना के पास है, इतना पाकिस्तान के पास है, और हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट है। पिछले साल गलवान घाटी में चाइना के साथ जो टेंशन हुई थी वो यहाँ पर हुआ था। यह पेंगोंग लेक है, 25% हमारे पास है, 75% चाइना के पास। तो इसी पेंगोंग लेक के आसपास हुआ था। अब यहाँ से जाना और ऊपर उस वाले कमरे में म्यूजियम है, वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे गाइड भी वहाँ पे। ठीक, ম্যাডাম আমাদের খুব ভালো ম্যাপ বুঝিয়েছে। पपिया, ग्रेप्स। ये ग्रेप्स क्या है? अच्छी है। ये तोड़ सकते हैं? अभी ये कच्चा हुआ है। अच्छा अच्छा, टेस्ट करिए। और मुझे आप थोड़ा सा एप्रिकॉट खिलाओगे ना? ठीक है। वो क्या एप्पल है? हाँ मैम, बहुत सारे। वो देखिए बोलो नहीं, देख एप्पल है बहुत है। अब तो बहुत लकी हो यार, पूरा नेचर तो आपके साथ ही है। ऑरेंज के पीछे। इसी रूम पे जाना है? हाँ मैम। शूज उतरना है क्या? हाँ मैम। उनकी है। इस डायनेस्टी को यबगो कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके बारे में बहुत से राइटर ने किताबें लिखा है। एक चाइनीज ट्रेवल आया, ह्यून सांग 6th सेंचुरी में आया, हिंदुस्तान के राजा हर्षवर्धन के टाइम। हाँ, वो अपने किताब में कहते हैं कि प्रिंस तुंग का, इस राजा का सरनेम यबगो था। लोग इसको यबगो तुंग कहते थे। इस वक्त पूरा खानदान को यबगो कहने लगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाम हैं सब इसी का औलाद, इसकी वंशज है, इसकी फैमिली है। मगर एक डेनमार्क के राइटर है मिस्टर आर्थन क्रिस्टनसेन, वो अपने किताब दहशती आपस्तन तुर्कस्तान में लिखते हैं, एक ज़माने में ईरान के 22 रियासतें थी, 22 स्टेट थी। इनमें से तजाकिस्तान के राजाओं का सरनेम यबगो था। और वो कहते हैं कि यबगो तुंग और उसके सेनापति नज़क ने मुसलमानों के साथ जंग की है। रजब तुंग और उसके सेनापति नज़क ने मुसलमानों के साथ जंग की है, क्योंकि ये लोग इस्लाम नहीं था। इस्लामी फौज अरब से ईरान की तरफ बढ़ने लगा तो उन्होंने इससे जंग किया करके बताता है। मगर 12 नंबर राजा सुल्तान बेग मंथल इस खानदान के सबसे ताकतवर राजा गुजरा है।
इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान पर अटैक करके हमला करके बल्तिस्तान तक पहुंच गया पर रूल की। बड़े बेटे तुराब खान को खपूल और शोरबत दे दिया। यह तुर्तुक शोरबत एरिया में पड़ता है। इसी राजा ने तुराब खान ने 15वीं सेंचुरी में इस पैलेस को तामीर करवाया। सिर्फ समर के 3 महीने के लिए राजा तुर्तुक आते, बाकी परमानेंट का राजधानी खपूल वहाँ पर रहते थे। अंग्रेजों की हुकूमत आई, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जितने भी राजे थे सबको ख़त्म कर दिया। एंड अब्दुल्ला खान इसके जब अंग्रेज चले गए 1947 में, तो इस देश को आज़ादी मिली। जब इस देश को आज़ादी मिली, इस देश का 2 भाग बन गया, पाकिस्तान और इंडिया। इस पार्टीशन के दौरान पूरा बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर चला गया, उस वक्त तुर्तुक भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। फिर 1971 की लड़ाई हुई बंगाल की। इस लड़ाई में पाकिस्तानी फौजियों को पीछे हटाया। यह तुर्तुक बल्तिस्तान से सिर्फ 3 गाँव हमारे हिंदुस्तान में आया तुर्तुक के साथ। और कोई पूछना चाहे? चलो, यह जो है ना पारसी था, पर्शियन। अभी इनका कोई वंशज रहता है तुर्तुक में? ये मेरा नाम है यबगो मोहम्मद खान का। मैं आई बिलोंग टू दिस डायनेस्टी, दिस इज माय मिलिट्री, ओके, एंड दिस इज माय पर्सन आल्सो। दे आर माय फादर एंड माय ग्रैंडफादर एंड माय ब्रदर। ओके, आपका नाम एक बार दोबारा दिखाइए सर। ये मेरा नाम है यबगो मोहम्मद खान का, जो मेरा नाम है। ये मेरा पापा का नाम है, ये मेरा दादा का नाम है। मैं सिर्फ प्रिंस तुम के औलाद हूँ। अरे। जो नहीं, लास्ट में मेरे लड़के का नाम है শাহনওয়াজ হাসান খান। ইয়াবগো ডাইনাস্টির বংশধরের থেকে সরাসরি বাল্তিস্তানের অনেক ইতিহাস জেনে এবার ফেরার পালা। তুর্তুকের মানুষ কালচারালি বালতি, ওদের মাতৃভাষাও বালতি। অনেক স্মৃতির সাথে ফিরছি। তুর্তুক শব্দের অর্থ বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছা। বেশিক্ষণ তো সত্যিই থাকতে পারলাম না, আবার নিশ্চয়ই পরে আসবো। এবার আসলে 2 দিন থাকবো। ফাজিল অনেক করে বলেছে এবার এসে থাকতে। সামনে শিয়ক নদী বয়ে যাচ্ছে। হুন্ডার থেকে তুর্তুক অব্দি পুরো রাস্তাতেই পাশ দিয়ে এই শিয়ক নদী গেছে। আর আমরা এখন ফিরছি তুর্তুক থেকে হুন্ডার। এই রাস্তা ধরে, ওই যে পাহাড়ের গায়ে, এই রাস্তা ধরে আমরা যাব। সম্পূর্ণ মরুভূমি, রাস্তায় কোনো গাড়ি নেই। বিকালের পরন্ত রোদে পাহাড়গুলো চকচক করছে। তুর্তুক থেকে ফিরে মনটা খুব ভারী হয়ে আছে। ফাজিলের ফোন নাম্বার নিয়ে এসেছি। বাড়ি ফিরে ওকে যখন ফোন করব, আমার ফোনটা লাস্ট ভিলেজ অফ ইন্ডিয়াতে কানেক্ট হবে। তুর্তুক থেকে এনেছি অনেক স্মৃতি আর মিষ্টি অ্যাপ্রিকট। না, কিনে আনিনি, গাছ থেকে পাড়া। এর থেকে দামি গিফট আর কিছু হয় কিনা জানি না। এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্রিকট, যেগুলো কালকে আমরা যখন তুর্তুক গেছিলাম আমাদের নতুন বন্ধু ফাজিল আমাদের এগুলো গাছ থেকে পেড়ে দিয়েছে, একেবারে ফ্রেশ। কিন্তু ও বলেছে 3 দিনের বেশি এগুলোকে রাখা যাবে না। তো আমি জানি না বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো কিনা, কিন্তু এখন তো খাচ্ছি। ভীষণ ফ্রেশ, দারুণ খেতে।